So, as in continuation of our chapter 1, input and output devices, we were looking hardware, software and peripherals. So after that hardware and software and peripherals, now you have seen in that the IPO cycle, first thing was input, right? So what is that input? So now today we are going to discuss about that input and input devices. Okay, so here you can see the define has been given. The devices through which we enter data and instructions are called input devices. The most commonly used input devices is the keyboard. Now, like when we are talking about input, so I told you कि all the machine work on when they got that software to work on. अब उस सॉफ्टवेयर में आप जब कंप्यूटर को वर्क करना है, सपोज कि आपने एक सिंपल एप्लीकेशन ओपन किया, दैट एप्लीकेशन इज अ कैलकुलेटर, राइट? Let me show you like this. Now you can see this is calculator on your screen. This is our app. अब आपको इस ऐप से काम करवाना है, ठीक है? तो what happens now? I will give some numbers. Suppose I have typed this 7. You can type it. You can click by mouse. So I am using my mouse. I have given 78. That is only a number. Then what I want, this 78 should be multiplied. I have given this instruction to multiply. Then I want any other number. Let's take 5, 6 numbers. So now this number 78, these star, these 56. This is symbol, this is number. These, what is this? Nothing. They are meaningless. They are the only numbers with a asterisk. There is no use. So, but it is our data. What we are providing it to computer, we providing the information or this data, means these 78, these symbol, one symbol and these number. That is our order along with the instruction data. तो ये हमारा data है, ये instruction है. Then we want to work on. अब इसको आगे work करवाने के लिए we need to give one more instruction. तो वो हम इसको equals to press करके देंगे. As we will click on equals to, the system will get understand. ये जो ऐप है दिस विल गेट अंडरस्टैंड कि ये दो नंबर्स जो उसे मिले उसको मल्टीप्लाई करना है, देन द वर्क विल बी गो ऑन. गॉट इट? तो जो वर्क डन हुआ मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, पहले आपने नंबर दिया, आपको क्लियर हुआ? हमने पहले नंबर दिए 2 और उसके साथ ऑर्डर दिया मल्टीप्लिकेशन का. वो जो था वो डेटा था, दैट डेटा वी हैव गिवन एज इनपुट. तो जो हमने प्रोवाइड किया वो था डेटा, और ये डेटा जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं देन इट बिकम्स इनपुट फॉर द कंप्यूटर. ओके, उस इनपुट पर कंप्यूटर ने जो वर्क किया दैट इज प्रोसेस, और उस प्रोसेस के बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली, वन आंसर वी हैव गेट, दिस आंसर इज आर इंफॉर्मेशन और वी कैन कॉल इट आउटपुट. इज इट क्लियर? तो अब इस मुझे उस ऑर्डर को देने के लिए, मीन्स उन नंबर्स को कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए वर्बली तो नहीं हुआ है ना, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द सिस्टम और एडवांस सिस्टम दैट आई कुड गिव माई इंस्ट्रक्शन वर्बली. दिस इज द पर्सनल कंप्यूटर वॉट आई एम यूजिंग. तो विच डिवाइस आई विल यूज? आई हैव यूज माई माउस. गेटिंग? तो दैट माउस इज एन इनपुट डिवाइस. तो द डिवाइसेस दैट वी यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन और द डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस. इज इट क्लियर टू ऑल? कि अब जो हमने डिवाइस यूज़ की, जैसे आपके पास कैलकुलेटर था, इसको यूज़ करने के लिए आपने माउस यूज़ किया. अगर मुझे ड्राइंग करनी होती और पेंट ओपन करती देन ऑल्सो आई हैव यूज्ड माउस ओनली. और इसकी जगह अगर मुझे टाइपिंग करनी होती तो इफ़ आई वुड लाइक टू टाइप अ लेटर देन आई कुड यूज़ कीबोर्ड. तो कीबोर्ड, माउस, लाइक टू रिकॉर्ड माई वॉइस एज यू आर वॉचिंग माई वीडियो, सो आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस, सो आई एम यूजिंग माई माइक्रोफोन, राइट? So this microphone, this keyboard and this mouse, these all are input devices that I am using to give orders. Getting it? So these are the input devices. So simplest way you understand, the devices through which we enter data and instructions are called input devices. I hope it is clear to all. Then the next one was processing device, right? The next comes after input what comes? Process, P. तो
process device. What is process device? Okay, process device is that processor or that CPU, central processing unit, is the process device for the computer or for your personal computer. तो जो प्रोसेस डिवाइस है वो आपकी कौन सी है? CPU. सो यू कैन इन सिंपल वे यू कैन से द डिवाइस दैट परफॉर्म all the task or all the work that you have ordered to do for the computer is known as processing device, and that device is CPU, central processing unit. In central processing unit, it is again divided into three parts. Okay, this is divided into three parts: MU, ALU and CU. Is it clear? MU, ALU and CU. So these three are your devices or the parts of CPU. Got it? So this is your processing device. Now after processing, the next device comes, that is O, means output device. In IPO, the next term comes O, means output. अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? जब हमने IPO पढ़ा तो IPO में अब आपने जो चीज़ें फर्दर डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर हो रही हैं कि हमने पहले इनपुट प्रोसेस आउटपुट पढ़ा कि सभी कंप्यूटर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं. उसके बाद हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिस्कस किया, और इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम अगर कैटेगराइज करें, अगर अलग अलग डिवाइसेस में हम इसको टाइप्स में डिवाइड करें, तो जो इनपुट देने वाली डिवाइसेस हैं मींस कीबोर्ड माउस, वो इनपुट कैटेगरी में चली गई. जो वर्क करती हैं वो प्रोसेस में चली गई, जैसे कि CPU. और अब जिससे हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाएंगी? आउटपुट डिवाइसेस. सो व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? लेट्स सी. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर. ओके, रीड अगेन. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा दैट वी एंटर इनटू अ computer, and the result that we get after processing is output. तो output devices क्या होती हैं? all the devices that gives us the result. हमने जैसे आपने कैलकुलेटर का एग्जाम्पल देखा इनपुट डिवाइसेस में, हमने उसमें जब नंबर्स डाले वो इनपुट था. जब प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट मिला तो वो हमको रिजल्ट कहाँ मिला? स्क्रीन पर, और स्क्रीन के भी मॉनिटर के उस पार्ट में जहाँ वो डिसाइडेड था. तो वो हमको जो आउटपुट दिखाया वो किसने दिखाया? मॉनिटर ने, है ना. तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस. सो ऑल द डिवाइस दैट गिव्स अस द डिजायर्ड आउटपुट और द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. अब इन आउटपुट डिवाइसेस को भी हम देयर आर मैनी आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो देयर. जैसे कि मॉनिटर तो मेन एग्जाम्पल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. Every work whatever we are doing, whether we are providing the input or we are getting the output, everything is displayed on the monitor, है ना. तो एक मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है. मॉनिटर के साथ में देयर इज़ अ स्पीकर विच हेल्प अस टू लिसन टू म्यूज़िक. तो स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो हमको ऑडिबल फॉर्म में आउटपुट देता है. उसके बाद प्रिंटर भी इज़ एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हमको उसमें भी रिजल्ट मिलता है. दैट रिजल्ट व्हाट वी कैन सी ऑन द मॉनिटर. जो मॉनिटर में हम सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में देखते हैं, उस रिज़ल्ट को हम प्रिंटर में ऑन पेपर ले सकते हैं. तो जब ऑन पेपर आ गया तो वो भी आउटपुट है. तो प्रिंटर इज़ ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस. एंड इसके अलावा, प्रिंटर के अलावा प्लॉटर्स भी होते हैं. दैट इज़ नॉट गिवन इन योर चैप्टर, बट प्लॉटर्स आर यू कैन कंसीडर लाइक अ बिग साइज ऑफ प्रिंटर. जैसे मैप वगैरह प्रिंट होने हैं, आर्किटेक्चर्स जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? प्लॉटर्स. तो वो भी प्रिंटर्स ही हैं. दैट इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस. गॉट इट? एंड आफ्टर मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड प्लॉटर, दैट टच स्क्रीन व्हाट यू आर यूजिंग इन योर होम लाइक फॉर स्मार्टफोन, तो वो टच स्क्रीन जो है वो दैट इज़ वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट. उसी स्क्रीन को आप इनपुट देने के लिए यूज़ कर सकते हो बाय योर फिंगर टच, और उसी डिवाइस पर आपको आउटपुट मिलता है. तो दैट टच स्क्रीन कैन कंसीडर एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. सो दिस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर क्लियर टू ऑल. सो व्हाट वी हैव सीन टुडे in first video we have seen hardware, software and peripheral.
Then in this video we are looking for input devices. We have seen what is processing devices, we have seen, and what are the output devices, that also we have seen, right? So these all are your IPO cycle which we have completed. Now these individual devices I will show you here. Here, like one is keyboard, then mouse, then microphone, touchpad, touch screen. As I told you, touch screen can consider as both. Then light pen, then scanners, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो आप गेम्स जब खेलते हो तब यूज़ करते हो, जैसे कि जॉयस्टिक। देन आप मॉल्स में जाते हो तो आप वर्चुअल गेम्स खेलते हो ना, तो दैट जॉयस्टिक। देन वीडियो गेम्स के लिए आप गेम पैड का यूज़ करते हो, तो गेम पैड। इसके अलावा हमारे जो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप में माउस की प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं, टच पैड यूज़ करते हैं, तो दैट टच पैड। दीज ऑल आर input devices. So every single input device, what is that and what is it used, we will see in next class. And in output devices, monitor, then printer and speaker. These are your output devices that we are going to discuss individually. Along with that, here in the facts you can see like this trackball, this barcode reader. Barcode reader is kind of a scanner, and this multifunctional printer. This multifunctional printer means ये all in one होता है, इसमें स्कैनर भी है, इसमें प्रिंटर भी है, इसमें ज़ेरोक्स भी हो जाती है, मीन्स फ़ोटो कॉपीज़ भी हो जाती हैं, प्लस ये फैक्स मशीन की तरह भी काम कर सकता है. तो ये जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, दैट कैन कंसीडर ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. Got it? So these every single device that we are looking here, and the parts of CPU means CU, ALU, this one, this MU, ALU, CU. These all every single device we will discuss separately in our next class. So that's all for the day. I hope you understand each and everything, all the defines, all the concepts that we are going to study next. All the things you have understood very clearly. So that's all for the day. Now you revise the things that we have discussed today. Till the time, stay happy, stay healthy. God bless. Bye bye.